Okay. So Yeah, Yogesh, okay. I've been able to see you. So I Please. was telling you about my four things why I want to join army. So I was in third. So after when I told him about my father marched on Rajpath, then I also told him I also wanted to do the same. And for the same thing, I joined NCC after my school. And in NCC, I practiced with the brakes, the sticks in under my legs, so that the legs and hands movement should be proper. And I just made it to the Delhi. And because of my good friend circle, sir, I was made the commander over there. And then I was also representing my directorate as best cadet, and I was all India best cadet in RDC 2K21. Sir, now the fourth and the major reason why I want to join defense was, and actually it was there in my heart, and I told him, sir, in my Almira there is my NCC uniform. It is well pressed, it is well maintained. Whenever I open my Almira, I just see it, and I just think that now I can't wear it anymore, and that feeling is something which actually hurts me. So, sir, I want to wear the uniform again. So that is why I want to join army. And this was my fourth and the last answer. So after that, GTO was, GTO actually was giving me some another command task, but then he took me to the another one, like दूसरे वाले पे ले गए मेरे को दूर वहां से 100 meters, and वहां पे he has given me the command task. In the command task, as soon as I started, I just said or to my subordinates that we are having this fatta and rassi and we are supposed to do this. And as soon as I said this, he told कि Hindi is not allowed. 10 minutes cut out of 15. You are just having 5 minutes left with you. And मैंने बोला 5 मिनट. मैंने कुछ मतलब उनसे मुंह पे नहीं बोला उनके, but I was thinking just 5 minutes. Then I said okay, कोई बात नहीं. Then पहला प्लान दिया मैंने, he said टूट गया. दूसरा प्लान दिया, ये भी टूट गया. तीसरा प्लान दिया, टूट गया. Last में I was having just 2 poles and I need to take that bomb type of structure out of the that circle. So अब उन्होंने पूछा अंदर कौन जाएगा. मैंने बोला मैं. उन्होंने बोला कैसे जाओगे. मैंने बोला सर आई एम जस्ट थिंकिंग ऑन इट. मैं चारों तरफ घूम घूम के ऑब्जर्व कर रहा था कैसे आएगा, कुछ हो सकता है, कुछ हो सकता है. फिर फाइनली आई गॉट अ प्लान. मैंने दिया, जैसे मैं चढ़ने लगा उन्होंने बोला ओके, अंडरस्टूड योर प्लान. नाउ योगेश, अगर मैं तुम्हारी जगह तुम्हारे सबऑर्डिनेट्स को भेजूं तो क्या. मैंने बोला सर इफ आई एम देयर टिल आई एम देयर आई एम नॉट गोइंग टू जस्ट सेंड माय सबऑर्डिनेट इन दिस. दे आर देयर टू हेल्प मी फ्रॉम बैक साइड. बोला ओके ठीक है. उन्होंने इतना बोल के मेरे को भेज दिया. In this, there was one scenario which happened. One of my subordinates, just number 19, when I was thinking and observing the task, he just went to another GTO. वो दूसरे का टास्क देखने लग गया जाके वहाँ पे, because he was not confident कि उसका होगा, तो वो दूसरे वाले में टास्क देख रहा था उसका. और then I just turned, तो मैंने देखा एक है, मैंने दूसरा कहाँ गया उससे पूछा, तो he told me कि वो उधर गया 100 मीटर दूर, वो दूसरे का देख रहा है. तो I called him, just number 19, we are here for some task. Just come. तो बोलता just wait, I am coming, I am just looking something. Then he came and 2 बार बुलाना पड़ा, फर्म आवाज में बोलना पड़ा, तब वो वापस आया. फिर हमने टास्क किया, हम वापस आए. एंड व्हेन आई वाज कमिंग बैक आई आस्क्ड हिम, लाइक तू ऐसा भाग क्यों गया. ही सेड यार मेरे को विश्वास नहीं है एसएसबी होने वाला है, तो इस बार टास्क देख लेता हूं, अगली बार अच्छे से करूंगा. When mindset is already for the next time and you are not going through, that's for sure. Okay. So okay, sir, Yogesh, these things. Yogesh, how many times you have faced SSB? How many times you got rejected? How many times you have failed? I generally don't use these words rejected, failed, but it is important to talk about it, because उसके बारे में कोई बात नहीं करता. सारे अच्छी बात करते हैं कि हम कैसे सक्सेस हुए. These are the stories. I want you to specifically tell how many times you got rejected. First time reject हुआ कैसा लगा? दूसरी time reject हुआ कैसा लगा? Third time, fourth time, and every time you got rejected. ठीक है. And what was the feeling? Okay. ठीक है. Okay. And कितनी ईमानदारी से कोशिश करी सुधरने की. ठीक है. और एक्चुअल में सुधरना कब शुरू किया और क्यों, कैसे? Tell me. I give you precisely 3 minutes to answer this question. Okay, sir. Yeah. I'll just try to wind up as soon as possible. So first SSB was on 6 September 2016. It was TES entry. I got screened out. And why I got screened out? Because I was like, very obsessed with the screening होगा कि नहीं होगा. And I was like, मेरी सांस ऐसे आ रही थी. When I was giving my narration in GTO and GTO कह रहा हूँ, the screening part. So my screen out हो गया first time. Second was my NDA chance. In NDA I got screened in, and in interview he asked me कि what are your hobbies? I said watching cricket. He asked me who is Bangladesh captain, because at that point of time Bangladesh और India की सीरीज चल रही थी. मैं बोला पता नहीं सर. बोला do you actually watch it? मैंने बोला हाँ सर. फिर उन्होंने बोला अच्छा.
तो ये बताओ इंडिया टीम का वाइस कैप्टन कौन है? बोला, वो भी पता नहीं सर। ओके, मतलब बैट का वेट क्या होता है? मतलब पता नहीं सर। तो देन ही फाइनली मेड मी फील दैट यस यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट एंड यू आर एक्चुअली लाइंग ओवर हियर। एंड मेरे को पता चल गया था उस टाइम पे, बट मैंने एक्सेप्ट नहीं किया उस टाइम। तब भी उन्होंने मेरे को इतना फील कराया, लेकिन देन आल्सो आई डिडंट एक्सेप्ट इन फ्रंट ऑफ हिम कि हाँ मैं झूठ बोल रहा हूँ। फिर क्योंकि एक्चुअली मेरी कोई हॉबी थी ही नहीं कभी जिंदगी में, मैं थोड़ा बहुत पढ़ो लिखो और जो करना है करो, बाकी हॉबी के नाम पे जिंदगी में कुछ था ही नहीं, इसीलिए तो सेकंड टाइम फेल। थर्ड टाइम इट वाज नेवी टेक एंट्री एंड आई गॉट स्क्रीन्ड in Navy Tech Entry. The main thing where I went wrong was GTO. In GTO, I was fighting with my mates. मैं उनसे लड़ रहा था कि भाई मेरे को फट्टा बल्ली दो यार, मेरे को आगे जाना है, मेरे को आगे जाना है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आगे तो जाना है, बट आई वाज नॉट हैविंग एनी प्लान। आगे जाके सिर्फ खड़े होना है मेरे, है ना? वो मुझे शो करना है अपने आप को कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ। सो दिस इज व्हाई आई गॉट फेल्ड इन नेवी टेक एंट्री। देन द फोर्थ अटेम्प्ट वाज अगेन एनडीए, एंड एनडीए द साइक वाला पार्ट, इट वाज फोर्थ अटेम्प्ट, यस इट वाज इलाहाबाद सेंटर। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैंने जब अपनी शीट खोली तो मैं घर से याद करके गया स्टोरी, सारा तेरा स्टोरी, मतलब आराम से दिमाग पे कि कुछ भी आएगा लिखना मुझे यही है, अब सेट करना है कि इस पिक्चर में ये स्टोरी सेट कैसे होगी। तो वही है कि अगर वो दिख गया कि मैंने एक्सीडेंट पे स्टोरी याद की है, मुझे दिख गया है कि उसका कोई बंदा डूब रहा है, तो मैं उसको एक्सीडेंट के साथ करूंगा कि मैंने फर्स्ट एड दिया, बैंडेज लगाया। बैंडेज का काम क्या है स्विमिंग में? Pre-fixated तो दिस टाइप ideas, ऑफ set थिंग। templates. हाँ, ओके। सो ये मैंने उस पे किया नेवी, उसको एनडीए अटेम्प्ट में, चौथे अटेम्प्ट में। एंड माय फिफ्थ एंड फाइनल अटेम्प्ट वाज टीईएस एंड आई गॉट स्क्रीन्ड आउट आफ्टर लाइक ये मेरा 12th के बाद वाली एंट्री 5 अटेम्प्ट मैंने दिए, और मैं 5वें अटेम्प्ट में टीईएस एंट्री आई गॉट स्क्रीन्ड आउट फ्रॉम बैंगलोर। Then after my graduation, I started giving SSB. So after my graduation, my first SSB was of FCAT in 2021. It was Holi wala din. I went in Banaras and I was actually मेरी आवाज वैसे भी तेज है, और जब GTO सॉरी वो GD चल रहा था स्क्रीनिंग का, तो I was shouting like hell. I was making everyone feel कि मेरी बात तुम्हें माननी पड़ेगी। और ये करके मैंने इतना चिल्लाया और फाइनली सब लोग मेरी बात मान भी गए, है ना? और उन्होंने मेरे को वो भी कर दिया कि हाँ भाई फाइनल ग्रुप प्लान भी आप दोगे, ग्रुप स्टोरी। मैंने ग्रुप स्टोरी भी दी, बट आई गॉट स्क्रीन्ड आउट बिकॉज मैंने इतना चिल्ला चिल्ला के, इतना स्टबर्न आई वाज कि मैंने किसी को कुछ नहीं बोलने दिया। देन द सेकंड FCAT, it was in December, which I was talking about. I got screened in. I tried to follow some of your rules, बट क्योंकि मैं आप पे विश्वास नहीं कर पाया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि 6-7 दिन में आपके साथ, हफ्ते 6-7 10 दिन. दिन रह पाया था। Yeah. हाँ, तो आई वाज नॉट एबल टू बिलीव इन योर आइडियाज। आई वाज एक्चुअली ट्राइंग टू थिंक कि हाँ यार पहले मैंने ये किया है, तो मैं पहले वाले कुछ कहीं कहीं आपकी रूल्स लगा रहा हूँ, कहीं पहले वाले रूल्स लगा रहा हूँ। और मैंने क्या किया GTO में, सबसे बड़ी गलती कि इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स में एयरफोर्स के जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं काफी हाइट में होते हैं। मुझे अंदर से पता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे पता नहीं अंदर से फील हो रहा है करने से पहले मैं कर ही नहीं सकता इसको, मैं अटेम्प्ट भी नहीं कर रहा हूँ। मैं उस पे रस्सी पे गया और मैंने कूदा, और अंदर से जब पहले फील हो रहा है मैं नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने पकड़ते हुए नीचे आया, गिर गया। दूसरा मैं अटेम्प्ट भी नहीं किया, फिर मैं छोड़ के भाग गया उसको। फिर मैं हाई जंप में गया, हाई जंप में मैंने छोड़ दिया, फिर एक बार ट्राई करने की कोशिश की, लगता है होगा नहीं, छोड़ दिया। तो ये वाली फीलिंग थी, मुझे लगता है कि जब मैं छोड़ छोड़ के भाग रहा था, व्हाई दिस वाज द रीजन व्हाई आई कुडंट मेक इट। और इन इंटरव्यू तो मैंने झंडे गाड़ सब दिए. खिचड़ी बना दी, सब झंडे गाड़ दिए. खिचड़ी बना दी इंटरव्यू। इंटरव्यू में as soon as I could sit there in interviewing room, he asked me कि अपने पापा की 3-4 गलतियां बताओ जो तुमने अच्छी नहीं लगती। वो तो रूम में तो घुसने से पहले ही बता दिया था आपको, बिफोर यू कुड रीच द चेयर. अंदर घुसने के साथ साथ. मैं चेयर में बैठ, मैंने गुड मॉर्निंग बोला, मैं चेयर में सिर्फ उसने बोला सिट, और जब मैं चेयर में बैठ रहा हूँ तो हवा में मेरी, मतलब आई कुडंट पार्क माई सेल्फ, हवा में ही हूँ मैं। और उसने पूछ लिया ये सवाल मेरे से, इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने। तो मैंने जवाब दिया, सर वो मेरे पापा ड्राइविंग अच्छी नहीं करते, मेरे पापा खाना अच्छा नहीं बनाते। भाई मतलब द आंसर्स, My dad कभी is मेरे not a पापा ने good खाना mom. जिंदगी में, These were the answers you were giving. आई वाज गिविंग these type of answers. तो उसके बाद उन्होंने पूछा कि मेंटोर कौन है, मैं राजीव सर। उन्होंने पूछा कि उनके बारे में, मैं आपके बारे में भी ज्यादा नहीं बता पाया, जो बताया वो भी शायद सही नहीं था, क्योंकि मैं आपको जानता ही नहीं था उस टाइम पे। Obviously, मैं I बोल know. रहा हूँ कि गाड़ी चलाते हैं, ये करते हैं, है ना? उसके बाद उन्होंने मुझे अपने उससे मैंने उनको ये फैमिली वाला इशू बताया कि हाँ सर मैं फैमिली है हमारी राजीव सर की। उन्होंने बोला फैमिली में क्या करते हो? हाँ सर हम बात करते हैं। उन्होंने बोला कि अच्छा, आई टोल्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक युवराज वाज अ न्यू गाय। हाँ, Yeah. युवराज। तो आई टोल्ड आई थिंक अबाउट युवराज कि हाँ सर युवराज इज अ न्यू गाय। बोला कहाँ से? इंदौर से। क्या करता है? मतलब सर अभी उसने 12th किया है, वो ग्रेजुएशन कुछ कर रहा है। बोला क्या? बोला वो पता नहीं सर। बोलता अच्छा तुम जानते हो उससे बात की है? मतलब बात तो नहीं की सर, So, थोड़ा बहुत जानता हूँ। you know, Yogesh, बोला हाउ कैन दिस बी फैमिली? या
That the answer is, मैं हमेशा बोलता हूँ it's a family. Why? Because I feel it. I feel it from here. Yeah. Are you confident कि I know more than at least as good as your parents know about you, or maybe more than them today? Sir, you know more than my parents because जानता हूँ ना? you are not only my teacher but also my very good friend. I express everything, every of my feelings to you. My personal involvement has been like that ना. मैं मन से है ना, because मुझे लगता है कि यार तुम 24 घंटे में क्या करते हो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. मैं नजर रखता हूँ कि भाई तू वजन कम कर रहा है नहीं कर रहा. वजन कितना था पहले Yes, तेरा sir. when you joined Sir, initially? initially 80 से ऊपर था, 83, 84. अभी कितना है? 8 निकल आया था मेरा. अभी कितना अभी है? सर 70 है, 69 विदाउट क्लोथ्स. मैंने अपना मेडिकल दिया, 69 है. कोई डाइट प्लान, कोई जिम, एनीथिंग? नथिंग? No जस्ट sir, couple no of sir, things no sir. changes in dietary habits and couple of अपना in the routine, है ना? एक्सरसाइज जो आपने बताई थी वो मैंने तो की है, और जो शेड्यूल था वो काम फॉलो. सारे होते हैं. उसका जवाब भी है ना योगेश उस समय था, बट एज यू सेड ऑनेस्टली कि सर उस समय मैं आपके बारे में ज्यादा जानता ही था, बिकॉज यू वर नॉट कनेक्टेड. इट वाज हार्डली एनी टाइम दैट एक्सेप्टेंस लेवल वाज नॉट देयर. जब वो तुझे Yes, sir. महसूस होने लगा, नाउ टुडे व्हेन यू हैव बीन देयर एंड यू सेड कि सर ना हिज मदर क्राइड है ना आउट ऑफ हैप्पीनेस, विकास मदर व्हेन आई हैड गॉन फॉर द मेडिकल ना, मुझे लगा कि सर वो है. नाउ यू हैड अंडरस्टूड द कांसेप्ट ऑफ द फैमिली ना, कि फैमिली एक्चुअल में होती क्या है. सर वो उतनी दूर से मुझसे मिलने आया, उसने बोला होटल में नहीं मेरे साथ में रहो. When you start feeling something from your heart and start living it, mean your word, what you say, walk your talk, then you are in a frame to answer. बाद में जब तू आया, then you actually knew. इंटरव्यू लोग अकेले में लेते हैं. आई सेड नो, पूरी फैमिली के सामने होगा. मैं इतने लोगों के सामने मैं अच्छे से उधेड़ दूंगा आपको. अगर आपने आज सच बोल दिया ना मन मजबूत करके, तो यार इंटरव्यूइंग ऑफिसर तो एक आदमी है. क्लोज क्वार्टर्स में आप क्या बोलते हो किसी का बाप पूछने वाला नहीं है. मन खोल करके बोल देना, ठीक है. बट 40 लोगों के सामने जब खतरा है कि भाई आज इज्जत टूटने की पूरी पूरी संभावना है, एंड सर इज क्वाइट गुड एट इट, आज जाऊंगा, तो एक बार गलती करके देख लो यार. जब ठोक बज पड़ोगे ना मेरे हाथों, तो उसके बाद में दिक्कत नहीं होगी. क्यों इतने लोगों के सामने अपनी गलती महसूस करी है, तो एक में क्या दिक्कत है, बिल्कुल सर, तो मैंने उस वही समय फील माना किया नहीं भी था. है. बट अब तू पूछूंगा कुछ किसी के बारे में डिटेल ना, नाउ यू विल से कि सर जानता हूं नहीं मानता हूं, बट यू विल टेल कि सर क्यों है फैमिली मेरी, यानी यू स्टार्टेड फीलिंग इट, यू स्टार्टेड बिलीविंग इन दैट, बिल्कुल सर, बिल्कुल. एक्चुअली whenever I am having anything, any such sort of problems, I am calling everyone. हाँ भाई बस विकास ऐसी ऐसी बात है. हाँ आज युवराज, एवरीथिंग. युवराज इज यंगर टू मी, देन आल्सो आई कॉल हिम. यार हाँ भाई युवराज एक काम करना, करंट अफेयर्स थोड़ा सा भेज देना मेरे को. तो ही सेंडिंग मी द करंट आज अफेयर्स आया उसका फोन, एज ही इज इन लाइक. ट्रेन, ही जस्ट बोर्डेड. कहता सर कल मैं कृतिका ओके. दीदी को फोन किया था कि दीदी मेरा इंटरव्यू लो, तो हाँ. सर इंटरव्यू का तो हो गया है, आई हैड गिवन इट टू कृतिका दीदी, शी आस्क्ड मी क्वेश्चंस रैपिड फायर ये वो, फिर मैंने उससे बात ओके. करी है ना, एंड ये करो, so it's a great strength. When my mother was in hospital that day, last time when I was taking class, किशन का कितने लोगों का कॉल आया, सर हम आ जाएं. मैं उतनी दूर से यहाँ हॉस्पिटल में आके तुम क्या करोगे, बोला सर आपसे मिल लेंगे, छोटे मोटे कुछ काम कर देंगे. I didn't call anyone, है ना, nobody could have done anything, doctors were doing their job best, but getting a call from you कि सर मैं आ जाऊँ, and I could feel है ना कि वो मन से बोल रहा है, सर मैं आ जाऊँ आपके पास रहूंगा ना, मुझे तसल्ली रहेगी. It gives you a lot of strength, यार इतना परिवार है आपका, है ना, your family is there and we are there to watch each other's back. This is how things function, सर. पहले रिजेक्शन यस को सर. लेके इतना ऑब्सेशन था, इतना डर था, अब डर लगता है लाइफ में किसी चीज से, अब ऑब्सेशन है ही नहीं सर. है ना. उन्होंने मुझसे पैशन होना लाइक चाहिए. he asked me one thing ना कि why you were not able to make it. मैंने बताया सर ऑब्सेशन. he asked me कि यार ठीक है ऑब्सेशन तो ठीक है, ये बता कि कौन से टास्क गलत थे. मैंने सर मैं आपको 1000 टास्क बता सकता हूँ जिसमें मैं गलत था. रीजन तो गुड. वही ऑब्सेशन ही है ना. तो ही asked me कि अच्छा ऑब्सेशन तो कैसे दूर किया, ऑब्सेशन को क्या किया ऑब्सेशन के लिए. बताया सर कि मैंने टीचर्स के जॉब के लिए रेज्यूमे अप्लाई किया है. सर मुझे एक आध जगह से कॉल भी आया हुआ है कि ज्वाइन करो, बट वो हिंदी मीडियम स्कूल है सर, तो मैं हिंदी मीडियम में कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो इससे मैंने अभी ज्वाइन नहीं किया. आई एम ट्राइंग फॉर इंग्लिश मीडियम स्कूल्स. तो इट इज नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ सर्वाइवल फॉर मी द आर्मी, इट इज अ मैटर ऑफ पैशन फॉर मी नाउ. पहले तो सर्वाइवल और पैशन दोनों था, अब सर्वाइवल नहीं है मेरे लिए. सर्वाइवल तो मैं बाहर भी कर लूंगा. तो कहीं ना कहीं मैं सेटिस्फाई करवा पाया कि हाँ भाई एक्चुअली फील करता हूँ. देन ही आस्क्ड मी अच्छा अभी पढ़ाते हो, मैंने कहा हाँ. तो उन्होंने मुझसे पैसे पूछे. सर दिस इज द आंसर व्हिच आई थिंक आई शुड टेल यू. उन्होंने मुझसे पूछा है कि कितने पैसे मिलते हैं. 3000 मिलते हैं. तो मैंने बोला अच्छा 3000 करते क्या हो. मैंने बोला 1500 मेरी गाड़ी के तेल के, 300-400 मेरे डाटा के सर, उसके बाद 200 की करीबन एक कोई किताब खरीद लेता हूँ सर महीने में. कभी सर एफकैट की उसकी एंट्री की बुक आ जाती है, कभी नॉवल कोई खरीद ली. इट इज नॉट फिक्स्ड, है ना. जो मैं सच है वो बताया. अब मैं उस तरह नहीं बोलूंगा हर महीने मैं एक नॉवल खरीदता हूँ 200 रुपए की. नहीं सर, मैं बोला 200 की एक खर्चा होता है सर. कभी पेपर न्यूज़पेपर वाले को दे दिया, मम्मी ने नहीं दिया तो कभी बुक में चला गया, खर्चा हो जाता है. बचते हैं 800-900 रुपए. मतलब उसका क्या करते हो. मतलब सर वो मैं अपनी मम्मी के लिए दीदी को देता हूँ. उन्होंने बोला दीदी को क्यों, मम्मी के लिए क्यों. क्योंकि उन्होंने एक क्वेश्चन मुझसे पहले पूछा था मम्मी के बारे में अच्छा क्या नहीं लगता. मैं बोला था सर वो अपने लिए कुछ करती नहीं है. बोला तो दीदी को क्यों देते हो फिर. तो मैंने बोला सर 900 रुपए, क्योंकि सर पहली बात मेरी दीदी दिल्ली में रहती है,
दिल्ली में चीजें सस्ती है। दूसरी चीज, अगर मैं मम्मी के लिए कुछ लाता हूँ तो मम्मी मेरी चीज पसंद नहीं करती, क्योंकि दिल्ली में सरोजिनी नगर है, वहाँ चीज सस्ती भी मिल जाएगी और दीदी की पसंद मम्मी को भी अच्छी लगती है। तो मैं 900 रुपए दे देता हूँ। तो धीरे धीरे करके जब दीदी 4-5 महीने में आती है तो उसके पास 3-4 हजार रुपए हो जाते हैं। उस 3-4 हजार रुपए में मेरी दीदी कुछ ना कुछ अच्छा लाती है मम्मी के लिए, और मम्मी खुश रहती है उससे, तो मुझे अच्छा लगता है सर। तो एक्चुअली पहले मैं पता क्या बोलता था सर? पता है मुझे, आई नो। बता। पहले पहले मैं बताता हूँ ना मैं तो पूछ कि चुका हूँ, पंद्रह तो सौ मेरे को दे चुका है जवाब, मैं उधेड़ चुका हूँ। 1500 गाड़ी के तेल के, 500 इंटरनेट के, 500 दोस्तों के साथ, 500 इधर, 3000 खत्म। जो कैसा था नहीं सर। तो मैं फेक कर रहा था अपने आप को मैंने इतना झूठा, इतना मैं डाइल्यूट कर दिया था अपने आप को कि मैं खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं आया। व्हेन यू सबसे केम इन माय लाइफ, तो हाँ, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा अंदर पैदा हुआ कि हाँ नहीं यार, मैं डाइल्यूट जरूर हुआ हूँ, पर अब मैं थोड़ा अपने आप को निकाल सकता हूँ इससे, धीरे धीरे करके शेड्यूल पे लाया। फिर मैंने, जब आपने बोला ना अपने योगेश इंटरव्यू लिखना चालू कर, तो मैंने लिखना जब चालू किया, हाँ मुझे लगा ये तो मैं था नहीं यार, ये आंसर गलत है। मैंने उसको काटा, फिर अपने आप लिखा, फिर आपसे पूछा सर इस तरह से प्रेजेंट करना से क्या सही होगा? बोला योगेश दिस इज अ गुड वे ऑफ प्रेजेंटेशन। फिर आपने उसमें बोला नहीं ये गलत तरीका है, इस बारे में ऐसे नहीं बोल सकते हम। प्रेजेंटेशन का तरीका जब आपने मुझे बताया, तब मुझे एक तरीका आया, एक डायरेक्शन मिला कि प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं अपने आप को। क्योंकि आपने ये चीज बोली थी कि यू आर अ सेल्समैन फॉर योरसेल्फ इन एसएसबी, या हमने एक है ना? एक्सरसाइज की थी, तो बिकॉज पीपल कंप्लेन पीपीटीटी में और बाकी जगह की, सर हल्ला बहुत होता है, एवरीबडी है ना, इट इज अ फिश मार्केट। देन आई यस टोल्ड सर, यू कि मैं ओके ठीक है, आज एक्सरसाइज करेंगे। फिर मैंने एक एक्सरसाइज कराई थी जहां पे मैंने बोला कि अगले 5 मिनट तक आई विल बी ऑन वॉच। आई वॉन्ट एवरीवन जो अपनी जगह जहां बैठा हुआ है हिंदुस्तान के जिस कॉर्नर में, तुम लोग मौजूदा भाव से सब्जी मंडी में अपना जो है टमाटर बेचने हैं। मैं सारे टमाटर बेचोगे, जो तरीका अपनाना है अपना लो, एनी बॉडी लैंग्वेज, एनी साइन, एनी वोबल, मीन्स एनीथिंग। एंड एवरीबडी स्टार्टेड, टमाटर ले लो, ये ले लो, जल्दी ले लो, सस्ते ले लो, जूसी ले लो। एंड देन उसके बाद में व्हेन आई आस्क्ड इंडिपेंडेंट नॉमिनीज, द मेंबर्स, कि हाँ भाई टमाटर किसने बेचे, तो दे सेड सबने बेचे सर, बट योगेश ने बहुत अच्छे टमाटर बेचे। यूं, है ना? तेरा तो आलम ये था कि साथ में आई थिंक पड़ोस वाली आंटी आ गई थी कि बेटा क्या बोला था उन्होंने? मैं बोला बेटा सब्जी लाए हो क्या बेच रहे? सो व्हाट आई टॉट यू गाइस दैट डे, आई सेड कि मैं जिस आदमी में दम है ना, वो अपने, है ना, तब भी बेचेगा मछली। ही विल नेवर गो बैक एम्प्टी हैंडेड। यस सर, खुद में दम होना यस सर। चाहिए, खुद पे भरोसा होना चाहिए, whether it is selling eggs, whether selling potatoes, tomatoes or fish. If you are in a fish market, you should be the best man. You sell your own product, यस you सर, are the salesman for yourself. तरीका निकालो मार्केट में अपनी मछली बेच के, and then go with a smile. ठीक है? That is what I यस told you. एक्चुअली सर। प्रैक्टिकल सर करके मैं दिखाया मैंने अब तुम्हें। सर अब इंटरव्यू हटाइए, अब नाउ आई जस्ट वांट टू टेल व्हाट आई फील अबाउट दिस क्लास एंड व्हाट ऑल आई हैव लर्न फ्रॉम हियर। सर एक खुदगर्ज आदमी और एक कमजोर आदमी था। एक्चुअली आई वाज नॉट ब्रेव इनफ टू फेस द थिंग्स। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके हिम्मत आई, व्हेन आई यू स्टार्टेड जस्ट वो बेइज्जती करना आपने जब चालू किया क्लास में पहले थोड़ा थोड़ा कि ये तेरा कुछ नहीं है, ये यहाँ पे गंदा है, ये खराब है, तो थोड़ा थोड़ा जब बेइज्जती से महसूस हुई, जब रातों को नींद नहीं आई थोड़ी 2-4 दिन ना, दोस्तों से बात की, जब फील हुआ तो थोड़ा लगा नहीं एक बार थोड़ा करते हैं, तो थोड़ा सा खुलना चालू किया। फिर आई स्टिल रिमेंबर दैट कॉल व्हेन आई कॉल्ड यू एंड आई सेड कि सर मैंने आज तक कभी किसी से नहीं बोला, बट आई एम टेलिंग इट इन फ्रंट ऑफ यू दैट हाँ यहाँ मैं गलत हूँ। That is the तो day वो I gained confidence, योगेश। जब तूने बोला ना सर मैंने जिंदगी में सिर्फ हिम्मत करके सच नहीं बोली, यू आर द फर्स्ट मैन जिसको मैं बिल्कुल सच बोलना चाहता हूँ। That was the day I हाँ was very confident. I said, when now Anna, the training will take a U-turn, and this boy Anna is going to make me proud. You know, because sometimes है ना, यस एक्चुअली कई बार प्यार से समझता आदमी, कई बार मोटिवेट, एंड समटाइम यू नीड टू हिट बिलो द बेल्ट एंड यू नीड टू हिट हार्ड। जब बात इज्जत पे आती है ना, यस तो सर आदमी खुल के आता है कि भाई अब नहीं होगा, बाकी सारी चीज मंजूर है, मैं इज्जत नहीं लुटवा सकता, एक डिग्निटी है, ये तो मैं काम करूंगा। ठीक है ना? सो यू लर्न योर लेसन, यू एक्चुअली मेड ए सर। यू टर्न बैक एंड यू सेड कि विद वेंजेंस अब करना है। तो वही सर। तो उसके बाद जब मैंने आपसे बोला पहली बार, उसके बाद धीरे धीरे करके मैंने अपना कॉन्फिडेंस गेन किया। फिर मैंने कृतिका युवराज से भी अपने इंटरव्यू दिलवाए। इससे मैंने कोशिश की कि मैं अपना अंदर सब कुछ बोल सकूं, सब कुछ बोलूं जो है। थोड़ा थोड़ा फील होता था नहीं हाँ मैं गलत बोल रहा हूँ, अभी ये झूठ है, ये वाला मैंने छुपाया है। फिर धीरे धीरे वो भी बोलना चालू किया। फिर देन यू अगेन टोल्ड मी अनदर थिंग, योगेश ऑनेस्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट बट विद कॉमन सेंस। विद अ लिटिल फिर बिट थोड़ा ऑफ सा ये भी कॉमन समझ सेंस। में आया कि सब, हाँ, कि बोलने का भी तरीका होता है, ये नहीं कि फिर आपने कपड़े उतार दिए तो यू नीड टू शो एवरीथिंग। या यू नीड टू शो द थिंग विद अ प्रॉपर कॉमन सेंस। फिर उसके बाद वो भी अप्लाई किया धीरे धीरे अपनी जिंदगी में, लिखना चालू किया, इंटरव्यू को महसूस करना चालू किया, फील किया। एक्चुअली में एक क्वेश्चन हुआ करता था पहले एसएसबी में जो मैं कभी आंसर नहीं कर पाता था। ये उससे आस में किसके अंदर कन्फाइड करते हो, किसके साथ पास जाते हो जब प्रॉब्लम होती है? तो मैंने बोला मम्मी के पास। लास्ट टाइम प्रॉब्लम क्या थी?
आई वाज लाइक ब्लैंक, प्रॉब्लम है ही नहीं कुछ। उसके बाद धीरे धीरे मैंने एनालाइज करना चालू किया जिंदगी में, हाँ यार मेरे पास प्रॉब्लम होती है, मैं किसके पास जाता हूँ? फिर याद किया यार दीदी के पास जाता हूँ, मम्मी के पास तो मैं गया ही नहीं। दीदी के पास जाया तो मैंने किया क्या आखिरी बार, हाँ मेरे पास पैसे नहीं थे तो दीदी से कुछ पैसे लिए थे मैंने। धीरे धीरे करके आंसर्स अपने याद किए, खुद को एनालाइज करना चालू किया। तो दिस वाज द मोमेंट व्हेन आई स्टार्टेड टेकिंग यू टर्न एंड स्टार्टेड एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर द एसएसबी। एंड देन आफ्टर कमिंग टू द फिजिकल फिटनेस, तो उसके बाद होता है ना, एक क्वेश्चन होता है कि आपके वेट ज्यादा है, आपका वेट ज्यादा है। मैं 85 था, एसएसबी जब गया तो 77 था, तभी ओवर वेट था एसएसबी में भी। लेकिन आई लॉस्ट ऑलमोस्ट 6-7 केजीज। इंटरव्यूइंग ऑफिसर आस्क्ड मी, यू आर ओवरवेट, व्हाट डू यू थिंक? मैंने बोला सर आई वाज 85, आई लॉस्ट माय वेट ऑलमोस्ट 6-7 केजीज एंड आई एम अबाउट लाइक आई एम ऑन इट। देन ही आस्क्ड मी वन क्वेश्चन, तुम्हारी हाइट के हिसाब से वेट क्या होना चाहिए? मतलब 65। तो हाउ डू यू नो इट? मतलब सर मैंने सर्च किया क्योंकि मुझे इस लेवल पे वेट लेके जाना है अपना। होता ओके, कहाँ सर्च किया? मतलब सर जॉइन इंडियन आर्मी की साइट पे। तो देन लाइक ही मे बी, मैं जो सोचता हूँ कि ये उनको सही में लगा होगा कि यार इसने कहीं सर्च किया है इस चीज के बारे में, इसको जो वेट लेके जाना है। तो आपने जो एक्सरसाइजेस बताई कि भाई वो ईंट लेके करना है ट्रेमर्स के लिए, वो मैंने किया, हाथ पे किया। Krish, are हेलो, you there? हेलो सर। Yeah, या yeah. आई एम देयर। I think सो we lost. एक टाइम तो ऐसा था, रात को सोते समय भी मैं अपने हाथ ऐसे करके सोता था कि हाँ हाथ हिल रहा है कि नहीं हिल रहा है। So this was the kind of motivation, and this all because of that source of energy. मेरे को भी शिवांगी also sometimes talk to me कि यार ये सर के अंदर ये एनर्जी कहाँ से आती है इतनी? मैंने बोला ये तो सर से पूछो। तो I think she asked you, तो you told her कि भाई मैं ढूंढ के बताऊंगा, Ah, है she ना? asked me this question. I said, well, nobody had ever asked me this question, है ना, Shivangi? But I said, man, there is one person I know. She is sitting in US, है ना? My हाँ, senior in the college days. I will ask her. I'm sure. तो मैंने उनको कॉल करके पूछा, somebody asked me this question, मैं इसका जवाब मिल सकता है? बोले, don't you know? I know, but maybe, है ना, I'm looking for a confirmation. बोला, you need confirmation. Yes. She told me, तू तू जो सोचता है ना, जो तेरे मन में होता है, वो तेरी जुबान पे आता है ना? और तू फिर करता भी वही है। एंड दिस इज फैक्ट। जो मैं मन में सोचता हूँ ना, आई अलाइन माई फीलिंग्स, माई थॉट्स, माई वर्ड्स एंड माई एक्शन इन जस्ट वन लाइन। ठीक है? मन में कुछ और चल रहा है, जुबान पे कुछ और आ रहा है, बाद में करूंगा कुछ और। इट नेवर हैपेंड इन माई केस। अगर मुझे कोई चीज पसंद नहीं है, चाहे वो फौज में सीनियर रहा हो, चाहे सिविल महकमे में कोई और हो, जो भी हो, मैंने हमेशा वो किया है जो मेरे को ठीक लगा, जो मेरे अंदर से आवाज आई ना कि दिस इज गुड, सही है, तो मैंने वही बोला, मैं सर ये सही है, ये पक्का होगा। अगर ठीक नहीं लगी तो फिर उसके बाद में मैंने मुंह पे खुल के बताया, जो सीनियर हो, मैंने कहा सर दिस इज नॉट गुड फॉर माई जवान्स, नहीं होगा, मैं होने भी नहीं दूंगा अपनी यूनिट के अंदर, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। सो यार, जब अपना मन, आपके थॉट्स एंड योर एक्शंस, यू जस्ट कीप इट इन वन लाइन, यू नेवर एवर गो रॉन्ग, वो चीज मजबूती दिखाई एक्चुअली देगी। एंड एनर्जी कम्स फ्रॉम यार, इसलिए मेरे ना जवाब यूं आ जाते हैं, मुझे ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, लोड नहीं लेता, ओवर थिंकिंग की जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा गलत हो जाएगा, बट मैं बोलूंगा वही जो मेरे को है ना महसूस होता है, करूंगा वही जो मेरे को ठीक लगता है, यू नो। that energy actually boosted me. And one more thing I want to mention, there was a time when my father was like, क्या मैं तेरे को पैसे नहीं दूंगा, तूने इतनी 6-7 जगह 8 जगह कोचिंग कर ली, मैंने तेरे पर 3-4 लाख रुपए उड़ा दिए। सो देयर वाज अ टाइम कि मेरे पेरेंट्स भी मना कर रहे थे कि अब तेरे ऊपर नहीं होगा, तेरे को करना है तो कर, नहीं तो खुद से देख ले जो है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन आई कॉल्ड यू ना, तो मुझे एक डर लग रहा था अंदर से, यार अभी एक और फीस देनी पड़ेगी मुझे, मैं कहाँ से लाऊंगा? मेरे पेरेंट्स ने भी मना कर दिया। आई कॉल्ड एंड आई टोल्ड यू, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आपके पास लोग जुड़े हैं या फिर कुछ हो, मैं आई एम टेलिंग इट फ्रॉम माय हार्ट। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज फीलिंग हेल्पलेस कि यार मैं किसी टीचर के पास जाऊंगा भी तो ही विल चार्ज मी सम फीस, एंड हाउ विल आई बी एबल टू गिव दैट फीस, क्योंकि मेरे पेरेंट्स नहीं दे रहे और उस समय मेरे पास 2-3 हजार रुपए आ भी रहे, तो मैं 2-3 हजार रुपए में कैसे करूंगा? ये 2 हजार तो खुद का खर्चा है, 1000 रुपए बहन को दे रहा हूँ, उस 1000 रुपए को बचा तो सकता हूँ। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मुझे लगा यार, व्हेन आई टॉक टू यू, तो आप जब आपसे बोला तो आपने बताया कि हाँ बेटा ठीक है, थोड़ी बहुत फीस है मेरी, बट उसका कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला सर तो भी आप बताओ तो कुछ फीस। तो यू टोल्ड मी अभी ज्वाइन करो बेटा, आई विल सी, आप बाद में देना, सिलेक्शन के बाद देना, अभी आप जस्ट कम इन माय क्लास, कोई बात नहीं, अगर आपके पास होगा तो ठीक है। आई स्टार्टेड, तो मैं बोला सर मैं ईएमआई पे दे सकता हूँ क्या? तो मुझे पहली बार भारत में कोई ऐसा आदमी मिला जो बोलता ठीक है मेरे को ईएमआई पे पैसे दे देना। आई स्टिल रिमेंबर, अभी भी आई हैव नॉट पेड योर होल फीस, तो आई एम प्रॉमिसिंग यू आई विल पे फ्रॉम माय स्टाइपेंड। डोंट वरी ऑन दैट। ठीक है? ओके, मनी सो इज नॉट अभी गोइंग मैं एनीवेयर। क्या बोल रहा हूँ, ओके या, सो अभी मैंने आपको जो 3,000 रुपए दिए सर 3 महीने में, तो 1-1 हजार रुपए जो मैंने बचा के दिए ना, तो यू नो दैट द वैल्यू ऑफ दैट मनी, कि भाई वो 1-1 हजार रुपए मैं 3,000 में जो मैं बहन योगेश, को मैं देता था हमेशा उसको कहता बचा। हूँ, द ब्यूटी इज, है ना, दोज कैंडिडेट्स
कई ऐसे भी आए हैं जो पहले काम नहीं करते। आई सेड मैं पैसे कमा के दो, मुझे ज्यादा खुशी होगी। ठीक है, एट योर एज इन सर्विस 22 साल 23 साल के हो और फादर से पैसे मांगोगे, मैं कह रहा हूँ तुम 1 महीना लेट दे दो, कमा के दो। ठीक है, एसएसबी में जाके बोलोगे सर प्लान ए बी है, मैं कहता हूँ 1 महीना टाइम है, डॉजे बनाओ, अपना रेज्यूमे बनाओ, अंग्रेजी मैं ठीक करके दूंगा, मैं बताऊंगा उसमें क्या लैंग्वेज लिखनी है, बट काम करके दिखाओ, कुछ कमा के दिखाओ। इंटरव्यू में बताना सर बहुत ज्यादा नहीं कमाता सर, बट 20,000 रुपए कमाता हूँ, फैमिली की हेल्प करता हूँ, यू नो। यस। सो तो पीपल सर हैव मेरे को व्हाट व्हाट आई फेल्ट लाइक आई जस्ट वांट टू टेल यू, ठीक है, कि मतलब एक आदमी मेरे को ऐसा भी मिल गया, चलो जो पैसे के बारे में नहीं सोच रहा ज्यादा, ठीक है, ही इज जस्ट थिंकिंग अबाउट मी एंड माय पर्सनालिटी, ही इज जस्ट थिंकिंग अबाउट मी गेटिंग सिलेक्टेड, है ना। तो उस टाइम पे थोड़ा सा फील हुआ कि यार नहीं, इस आदमी के साथ जुड़ना है, आई वांट टू बी विद दिस पर्सन, एंड आई वाज लाइक ठीक है, एक बार जुड़ के देखते हैं। मतलब धीरे धीरे पैसे, मैंने 1,000 रुपए बचा रहा हूँ, उसको बचाया, बिकॉज आई पेड यू 3,000 एक बार में, मैंने 1,000 करके बचा के उसको एक बार में 3 महीने में आपको दिया। मैंने तो कितनी बार वो जो रिमाइंड मुझे कराया लगा तुझे ना पैसे के लिए, कितनी बार जिक्र किया मैंने फीस के लिए? आई थिंक अभी तक तो शायद नहीं किया आपने मेरे से ऐसा कोई पर्सनली, यू नेवर कॉल्ड मी कि कोई बिकॉज व्हेन यू फीस कॉल करना इट है अ या कोई फैमिली, फीस आई नो देना है। ओनर्स रिस्पांसिबिलिटी लाइज विद यू, है ना। ठीक है, हाँ, आई हैव डन तो माय जॉब, ठीक है, वो दैट्स नॉट मुझे, अ इशू, है ना। फ्यू थिंग्स आर ओवर बिकॉज एंड सर अबव मैंने दिस, यू नो योगेश। मैं इतनी क्लासेस में गया, ठीक है सर, बाकी लोग भी बोलते हैं कि मैं मेंटोरशिप कर रहा हूँ, मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मैं कोई कोचिंग खोल के नहीं बैठा, बट when you report there, I'm telling you my experience, when you report there, they will be like this, my fees is 25,000 rupees, you need to pay it on, सर लाइट चली गई मेरी, नो सिर्फ आपको इश्यूज, फेस दिख रहा होगा, नो इश्यूज। ठीक है। तो when I have gone there was like this, my fees is 25,000 rupees for 14 days, and you need to pay this on the very first day, then only you will be allowed. We are also having the hostels, in the hostels you need to pay 500 to 600 rupees per day। तो 15 दिन के 60-60 हजार रुपए तो ये हो गए, 25,000 रुपए हो गए, तो 33-34 हजार रुपए तो वो आने जाने का किराया अलग। सो इफ आई एम गोइंग फॉर द कोचिंग फॉर द वन टाइम फॉर 15 days, सो आई एम स्पेंडिंग ऑलमोस्ट 40,000 रुपीज। सो दैट लाइक, ठीक है, वो मेरे फादर थे, किसी का भी फादर होगा तो 8-9 बार देने के बाद ही विल फीलिंग लाइक यार इतने पैसे लग रहे हैं। सो कहीं ना कहीं कमर्शलाइजेशन ने भी मेरे को तोड़ के रख दिया सर। दैट कमर्शलाइजेशन, मे बी दे आर ऑल्सो फ्रॉम आर लाइक आर्मी बैकग्राउंड, दे गॉट रिटायर्ड, सर ये बर्दाश्त नहीं हो पाया। लाइक सर अभी लाइक व्हेन आई गॉट एयर वन, नाउ दे आर कॉलिंग मी, दे आर लाइक ओके योगेश, आई जस्ट वांट योर फोटोज, योर इंटरव्यू विथ मी। मतलब व्हाई शुड आई गिव यू माय इंटरव्यू टू यू, क्यों अब देना है भाई? मतलब जब मेरे को आपकी जरूरत थी, जब मेरे पास पैसे नहीं थे, जब मेरी हिम्मत नहीं थी देने की, तब आपने मेरा साथ छोड़ दिया। उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ आपको पता नहीं, मैं जिंदा हूं मर गया आपको पता नहीं, मेरे एसएसबी में मैं स्क्रीनिंग हुआ नहीं हुआ आपको पता नहीं, मैंने आपको कभी कॉल नहीं किया, आपने मेरे को कभी कॉल नहीं किया, ना कभी पूछा कि क्या है। नाउ यू वांट माय इंटरव्यू, नाउ यू वांट माय फोटोज जस्ट टू गेट द स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री, यू वांट टू फूल द कंट्री। तो आप बताओ सर, अब मैं क्यों दूं उनको इंटरव्यू? सो दिस इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम माय हार्ट, दिस इज माय फ्रस्ट्रेशन व्हिच इज देयर फॉर दीस पीपल्स। क्या सर आप ठीक है, आपने आर्मी में ठीक ठाक पैसे कमाए, you are opening up the coachings, you are earning crores of rupees, and like अगर कोई बच्चा, मैंने देखा है सर यहाँ पे भी, there was a student from हरियाणा, वो चंडीगढ़ आया था, he was having 1,000 less, उसने बोला सर मेरे पास 24,000 रुपए हैं, 25,000 मैं नहीं अफोर्ड कर पा रहा हूँ। तो he was like कि नहीं बेटा, नहीं हो पाएगा, 1,000 में भी नहीं हो पाएगा, हमें फीस देनी पड़ती है, हमें ये करना पड़ता है। मैंने बोला वो his father was a laborer, तो वो 24,000 रुपए भी दे रहा है आपको, तो उसके लिए बहुत बड़ी चीज है सर। Unfortunately, Yogesh, this उस is टाइम a पे सर, harsh reality and fact, you know. I've seen, and that's why a lot of people, you know, they tell me कि हम ये कर लेते हैं, साथ में कर लेते हैं, मैं हो नहीं पाएगा। मैं, आप लोग मेरे को अपने जैसा बनाना चाहोगे, मैं हो नहीं पाऊंगा, मेरे को चेंज कर नहीं पाओगे, मेरे जैसा मैं आप बन नहीं पाओगे। ठीक है, आई एम हैप्पी, आई स्टार्टेड विद वन फिगर, डिड नो ब्रांडिंग, नो दिस थिंग, बिकॉज आई नो, है ना, इफ देयर इज वन योगेश, है ना, आई डू माई जॉब, यू आर गोइंग टू बी माई ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, तू अपना काम कर, तू अपने जैसे 4 आदमी और बना कि भाई मैं भी पहले मोटा था, मैं पतला हो गया, तू भी हो सकता है, तो यू नो, यू जस्ट पास इट ऑन टू समवन एल्स। काम सारे हो जाते हैं, बट यू नो, एक्चुअली सर, अभी आई रियलाइज, अब मेरे को इतने लोगों ने बोला कि तू बेवकूफ है, अपनी जेब से पैसे लगा दिए, फ्री में काम कर रहा है। मैंने कहा एडवाइस ओनली टू बी गिवन ओनली व्हेन आई आस्क यू वन। ठीक है, डोंट गिव मी एडवाइस। नंबर 2, पैसे मैं देता हूँ, मेरे वाला काम करके दिखा दो, यू आर ऑल्सो ऑफ द सेम रैंक, डू इट। मोटिवेट कर दे तू एक बंदे को, मैं तेरे को डबल फीस देता हूँ, चल। वो कह रहा है यार हो नहीं पा रहा, वो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं मेरे को, तो आत्महत्या कर लूंगा, ये कर लूंगा, मैं तो रोक ले। कह रहा है यार हो नहीं पाया, मैं तो खुद ही डिप्रेशन में आ रहा हूँ। बट यू गाइज आर माई सोर्स ऑफ एनर्जी यार, मजा आ रहा है तुम लोग के साथ इन्वॉल्व होके। आई पर्सनली हैड इवॉल्वड एंड केम टू सम अदर लेवल ना टुडे, लोग सिखा करके। यस सर, एंड yesterday also I mentioned somewhere, people are flowing, and either they are trying to lure you on somebody else success, or they are trying to, you know, scare you। बहुत मुश्किल है,
एडमिशन लेने के बाद बोलते हो प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, जस्ट बी नेचुरल, जैसा है वैसा बोल दो। ओ भाई ये तो ऐसा तो बोल दो, बट देन आई टोल्ड यू देयर इज अ वे टू टेल यू, इवन इफ यू हैव टू से नो, देयर इज अ वे। अभी ये किसी का मेरा मैसेज आया कि कैन वी फॉलो ईच अदर, आई डोंट नो, सम लेडी। मैंने कहा मैम विद ड्यू रिस्पेक्ट, है ना, नथिंग, नो ऑफेंसेस, है ना, बट आई जनरली कीप माई सेल्फ रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू माई फैमिली, माई स्टूडेंट्स, ठीक है, मैं उन्हीं का फैन हूँ सिर्फ, ठीक है, तो आई जनरली डोंट फॉलो दिस, बट आई हैव गॉट ड्यू रिगार्ड्स एंड रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन। आई विल विजिट योर पेज, do my like, comment, I'll endorse my comments, and I'll put some messages there, you know, I hope you understand my perspective, thank you so very much। नहीं तो यार जब मैं, एक आदमी था मेरे पास में एंड दैट वाज ओनली माय सन, उस समय तो मुझे किसी ने नहीं पूछा कि जी मैं आपको फॉलो कर लेता हूं, आप मेरे पास आ जाओ, नीदर आई एम इंटरेस्टेड को मुझे फॉलो करे ना करे, ठीक है। बट जितने भी है, बट मैं कोशिश फिर भी करता हूँ, एक जवान हो, कोई ऑफिसर हो, कोई बड़ा आदमी हो, कोई गरीब आदमी हो, एनीबडी हु पुट सम मैसेज टू मी, आई सी कर्सी डिमांड्स एंड आई शुड आल्सो, टाइम है तो मैं लिख देता हूँ थैंक्स माय डियर, नहीं होता तो मैं ये इमोजी भेज देता हूँ कि मेहरबानी, धन्यवाद, है ना, इट कॉस्ट यू नथिंग। अभी एक एग्जांपल व्हाट यू वर टेलिंग, दैट वाज रियली वेरी सरप्राइजिंग। फौजी ऑफिसर इज सन कॉलिंग अप कि पापा की आत्मा आपको देख रही होगी, बड़ा अच्छा लगेगा, वो हमेशा आपको देखना चाहते थे, ब्लडी Okay. बगर वेयर वर यू फॉर लास्ट 2 years यार। यार आप अपने डैड को एंड द वन हु इज नो मोर, गॉड ब्लेस हिज सोल, आप उनको भी इनकैश करना चाहते हो मार्केट में, वेयर यू वांट टू गो एक्चुअली यार, सरप्राइजिंग। एनीवे, लीस्ट सेड द Sir, बेटर, we, है ना, बिकॉज ना yes, नेचर एंड actually. सिग्नेचर ऑफ ए पर्सन लाइफ टाइम इट नेवर चेंजेस, यू नो, नेचर चेंज नहीं Actually. होता आदमी का, हैबिट्स चेंज हो सकती हैं बट नेचर वैसे ही रहेगा जैसा है, यू नो, इट इज अ डेली Yes. प्रैक्टिस। अच्छा ये बता So, योगेश, सॉरी yes, यू sir. सेइंग समथिंग, हाँ। सर मैं तो सिर्फ इतना ही बोल रहा हूँ सर कि इतनी सारी कोचिंग्स में गया, इन लोगों ने इतने पर्चे बांटे, इतने पैसे लिए मुझसे, आई हैव लाइक नाउ आई एम रिग्रेटिंग व्हाई आई वेंट देयर, क्योंकि सर जिंदगी में इतने पैसे मेरे पापा के बर्बाद कर दिए, करीबन कम से कम सर इतनी कोचिंग में 3 से 4 लाख उड़ गए मेरे घर के। कोई बात नहीं योगेश, पता तो है आदमी नाउ आई हर एम जगह रिग्रेटिंग। उम्मीद में ही जाता है और लोग फायदा भी इसी का उठाते हैं ना, कि जब आप उम्मीद में जाते हो, मैं देखता हूँ एक कैंडिडेट है, पहले दिन मुझे दिख रहा है कि भाई ये बिल्कुल बिगड़ा हुआ केस है, बट वो कहता है सर मैंने इंटरव्यू फलाने फलाने को दिया था, कर्नल सो एंड सो, ब्रिगेड सो एंड सो, मैं क्या हुआ, सर उन्होंने बोला कि तुम्हारा बहुत बढ़िया, तुम्हारा इस बार पक्का हो जाएगा। अब ये चीज कानों को ना बड़ी अच्छी लगती है सुनने में कि तुम्हारा हो जाएगा। मेरे पास आया वो पहले दिन बड़ी, ही वाज रिप्ड अपार्ट, ही सेड सर ये तो उधेड़ दिया मेरे को, तो कभी किसी ने ऐसे नहीं बोला, मुझे बताया मैं बहुत महान हूँ। मैं भाई तू खोखला है, तुम्हारे अंदर कुछ नहीं है, यू आर नॉट इवन ए गुड मैन, फॉरगेट अबाउट बिकमिंग एन ऑफिसर, ठीक है, ओएलक्यूज के चक्कर में पड़े हो, बेसिक हैबिट्स ठीक नहीं है तुम्हारी। ये पहली बार इज्जत लूटी तो वो अगले दिन आया, कहता सर फिर इसको कैसे कर सकते हैं, रिपेयर करना पड़ेगा, मेजर रिपेयर केस है तुम्हारा। बट काम तो सारे हो जाते हैं योगेश, बट है ना, इट इज, ये समझ में आने वाली बात है। डिड आई टेल यू कि यार मैं प्लीज भाई ये मेरे पर्चे बांट देना, कई लोगों को बता यार, जरूरत है, नॉट रिक्वायर्ड, Sir, ठीक है। like yes, I suggested very of my friends about you, but it was all because of what I feel about you. You never told me, and now also I just like whenever anyone asks me कि क्या है, मैं आपका नाम बताता हूँ because I feel about you. दैट्स काइंड ऑफ यू But you योगेश, never है told. ना, बट मैंने अपनी तरफ But से you कभी never कोशिश told me नहीं करी, about आई it. नेवर टोल्ड एनीवन, ठीक है। बताने चाहे की वो सर काम बोलता है यूट्यूब सर, है, आप कहीं बोलते पे हैं ना भी है सर। ना, सबसे कम कमेंट्स अब मेरे खुद के अपने है ना फैमिली के, स्टूडेंट के, एक आधा कोई डालता है, नहीं डालता नहीं डालता, बट ठीक है, इट्स ओके यार, आई शुड नॉट बी टेलिंग देम कि यार प्लीज उसमें कमेंट्स डालना, वो दिन रात तो मेरे को सुन रहे हो बेचारे, उसमें कमेंट डाल के क्या करेंगे, है ना, 2 मिनट कमेंट डालने में वो 3-3 घंटे तो मेरे साथ ही होते हैं रोज, इट डजंट मैटर। जितने इंटरव्यूज Okay, दिए yes sir. मॉक और अकेडमीज में, सबसे मुश्किल इंटरव्यू कौन सा रहा था? So, वो वाला जो दोपहर मतलब जो आपने लिया था क्लास पे सर, है अच्छा एक्सपीरियंस था, खराब था, या बहुत ही बहुत खतरनाक खराब था, बहुत ज्यादा खराब एक्सपीरियंस था। था? है, और तूने मेरे को पक्का कुछ बहुत कुछ बोला होगा उस इंटरव्यू के बाद में, योर इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, एवरीथिंग वाज वेरी विजिबल, और मैंने बहुत धो धो करके रगड़ा उस दिन, नहीं? हम्म? एक्चुअली में सर बहुत बेइज्जती हुई थी क्लास में। और मैंने तेरे को फिर बोल दिया था जाने से पहले, सेम टू यू, अगर मन में कुछ भी सोचा है बोला मेरे बारे में। बाय द है? वे सर, यू वर आस्किंग समथिंग, अभी आप कुछ पूछ रहे थे सर। योगेश एक बात बता। हाँ मैं ये पूछ रहा था कि सबसे मुश्किल इंटरव्यू कौन सा रहा, मेरे वाला रहा? अच्छा, मेरे को बहुत बेइज्जती महसूस हुई सर। बट इट वाज फॉर है योर ना? गुड, बिलीव मी, है ना, बिकॉज मुझे यस मालूम था एक्चुअली सर। जहां तकलीफ होती है, अगर मैं वहां उंगली रखूंगा ना, यू विल मेक ए कम बैक। हम्म। अगर मैं ये बोलता हाँ योगेश इस बार तो मैंने बहुत मेहनत करी, देखो मैंने कितना अच्छा सिखाया, तो आप झंडा गाड़ दोगे जाते, तो नहीं होने वाला किला फतेह, नो। आपको लगना चाहिए यार मैं बड़ा बिल्कुल चौधरी सर। बन के घूम रहा हूँ, ये आदमी शिकार करते समय सोचता ही नहीं, फटाफट लेता है मार देता है, नो। यार जब बचता है आदमी ना तो तकलीफ होती है, जब बुरा लगता है ना किसी चीज के लिए, देन यू एक्चुअली ना स्ट्राइव हार्ड, यू नो, जब बात इज्जत पे आती है, यू नो, यस वो सर। फिर तभी हुआ वहां से, ठीक है ना। सर सबसे
कोई मजेदार सबसे मजेदार कोई इंसिडेंट याद आता अपनी ट्रेनिंग के दौरान तुझे? मजेदार, हाँ। वो प्रभदीप की स्टोरी। ओह अच्छा, एक अभी स्टोरी आई थी, उसमें एक छोटा सा बटन बना हुआ है एंड ओनली फिंगर इज शोन ना, उसमें बटन पे प्रेस कर रही है फिंगर। मैंने कहा भैया ये उंगली वाली जितनी भी स्टोरी आती है, सबसे बड़ा फिंगर राइटर है ना प्रभदीप है, मैं प्रभदीप शुड डू वंडर्स इन दिस काइंड ऑफ स्टोरी। सो उस दिन मैंने क्लास में सबसे स्टोरी पूछी, प्रभदीप से पूछना भूल गया। तो प्रभदीप कह रहा सर मेरे से तो आपने पूछा ही नहीं सर, इसका तो एक्सपर्ट मैं हूं, उंगली जहां पे आती है, आई विल गिव यू गुड स्टोरी। एंड दैट डे ही एक्चुअली गिव अ गुड स्टोरी। ओके, बट वो वाला सबसे फनी सीन है वो, बिकॉज़ प्रदीप सर वो सही में बहुत फनी आदमी है, बहुत मतलब हंसाता रहता है सबको। मैं प्रदीप, why you want to join army? Sir, I want to become chief of army staff. Wow, bloody what a passion. Good. मैं who's the present chief of army staff? कहता साहब सानू नहीं पता। मैं कहां से बनना तुमने, ये तो पता तुम्हें नहीं? कहता सर थोड़ा थोड़ा पता है। मैं तो थोड़े थोड़े बनोगे आप। गुड चैप है, जोश टाइप है। बहुत अच्छा आदमी। गुड। सबसे अच्छा तो मुझे लाइक यस सर, द ट्रेनिंग हैज नॉट फिनिश्ड एज आई सेड। रिटर्न एग्जाम से लेकर के जब तक एकेडमी के गेट में नहीं घुसता है ना, यू विल बी माय रिस्पांसिबिलिटी। अभी तो मैं स्विमिंग कर रहा हूँ सर, आपने बोला है तो अभी और हाँ, एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ। अभी पहले वो था, फिर मेडिकल का इशू आ गया, हैंड ट्रेमर्स आई है, बट वी वर्कड अपॉन इट। नो मेडिसिन, नो कैप्सूल, नथिंग। ईमानदारी से काम किया, वजन भी कम हो गया, ट्रेमर्स में भी दिक्कत नहीं आएगी। सर करो चेक, है ना, हो गया, हाँ है हो ना, गया सर। सेल्फ कंट्रोल भी अच्छा आया। नाउ अभी एकेडमी जाने तक हिदायत ये है कि चोट नहीं खाना, बाइक पे इधर उधर घूम रहे हो बिल्कुल फ्रेंड के साथ, नो। दोस्त बोलते हैं इधर नो सर। सेलिब्रेट करते हैं उधर करते हैं, नो। ठीक है, ओनली टू थिंग्स यू शुड डू। वन, यू शुड नॉट सस्टेन एनी काइंड ऑफ इंजरी, स्टे अवे। ठीक है, नो ओके एडवेंचर। सर। दूसरी सर चीज, अभी लोग बोलेंगे कि एकेडमी में जाकर के मैं वहीं पे ना झंडे गाड़ दूंगा सीधा, अगेन रॉन्ग अप्रोच। अभी व्हाट वी डिसाइडेड, वी विल स्टिक टू आवर प्लान। फिजिकल्स 5 किलोमीटर तक, बिकॉज ओटीए इज ऑल अबाउट रगड़ा रगड़ा एंड रगड़ा। 3 सीजंस यू विल फेस, हॉट, हॉटर एंड हॉटेस्ट। ठीक है, सुबह 5 बजे यस जब बस से सर। जाओगे, ओ गॉड गिव मी द स्ट्रेंथ, उतने में तो पसीने टपक रहे होंगे हर जगह। यू विल बी स्वेटिंग लाइक ए पिग अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock। ठीक है, एक ही दिन के ओके अंदर पूरे वर्ल्ड में और कहीं नहीं हो रहा, इसी यूनिट में अपना एकेडमी में होगा चमत्कार। एक दिन पहले बीपीटी जाओगे 5 किलोमीटर, और वहीं से हथियार जमा करके आओगे, ड्रेस चेंज करोगे, खाना खाओगे, फिर हथियार विड्रॉ करोगे एंड रिपोर्ट टू ड्रिल स्क्वायर। यानी कि 1 घंटा फिर ड्रिल स्क्वायर में थम खाली 1-2, थम खाली 1-2, थम खाली 1-2। जिगरा चाहिए, छाती मजबूत चाहिए। ठीक है, टू डू बीपीटी एंड ड्रिल ऑन द सेम डे अर्ली मॉर्निंग। सो फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देना है, 5 किलोमीटर की आदत डालनी है। मैंने बोला 2 दिन के बाद ब्रेक ले, 3 दिन के बाद। पक्की रोड में नहीं दौड़ना, शिन पेन होगा, महीनों लग जाते हैं ठीक होने में। कच्चे ट्रैक में दौड़ना है। यस सर। फिजिकल एंड ओके सर। एंड्योरेंस अच्छी करनी है, स्विमिंग मस्ट। ड्रिल तेरी वैसे यस सर। अच्छी है। ठीक है, वंस यू रीच देयर, यू नो, बाकी लोग जहां सीख रहे होंगे, पहले टेस्ट में एम शुड बी टू क्लियर एंड गो ऑन आउट पास। अगेन हार्ड अर्न एंड वेल डिजर्व। मैं पहला गया था अपनी कंपनी के अंदर, ओके सीधा लड़ी बाहर जाके वे सीनियर्स का जाके, आज बियर भी पी के आएंगे, केक भी खा के आएंगे, नॉन वेज भी खाना है, बट यू डू अर्न इट, यू नो। एंड हमें लगा कि भैया यस मैं सर। बाहर जा रहा हूँ तो चलो ठीक है। तो जसामी से बड़ी गेट तक बोला कि भाई वहां जाना है। अच्छा, एंड बोलता है क्रोकोडाइल पोजिशन, टाई नीचे लटक रही है, फॉर्मल्स पहने में क्रोकोडाइल। वो वहां से ब्लड, इट इज 1 किलोमीटर, कूद एडवांस कूद के क्रोकोडाइल एडवांस जंप, एडवांस एंड एडवांस। बड़ी। जब तक वहां पे पहुंचे यार, मतलब हालत ऐसी हो गई थी, आई वाज स्वेटिंग लाइक ए पेग। पूरा पसीना अरे गंदा हो रखा है। मैंने कहा आउट पास तो खत्म ही हो गया, बाहर क्या करेंगे, ये तो भिखारी जैसा लग रहा हूँ। कह रहे कम लेट्स एंजॉय। मैं सर कुछ छोड़ा तो नहीं करने लायक। तो गेट के बाहर जाने तक बचता हुआ गया था, यू नो। सो इस पे फोकस करना है। बाय द टाइम यू गो वहां पे, यू शुड नॉट बी फाइटिंग ना कि मैं ये कर रहा हूँ। इनफैक्ट अभी मैं प्रॉब्ली है ना, शायद 1.5-2 महीने के अंदर कोशिश पूरी है कि आई गो इन ऑफलाइन, आई एम वर्किंग ऑन सम कंसेप्ट। वंस दैट थिंग इज ओके डन, तो उसके बाद में एज अ पार्ट ऑफ माय ट्रेनिंग, दिस थिंग आल्सो आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस। ट्रेनिंग इज अ ऑनगोइंग मोड, आदमी रिटायरमेंट तक है ना उसमें रहता है, एंड दैट्स व्हाई आई हैव बीन एबल टू कीप माय सेल्फ लाइक दिस। सो वंस एनीबॉडी इज डन, ही कम्स इन द मेरिट लिस्ट, उसके बाद में एकेडमी जाने से पहले, एकेडमी में जितना नहीं रगड़ोगे उससे ज्यादा मैं रगड़ के भेज दूंगा। आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस। मेरे ऑफिसर्स मुझे कहते हैं, बोले सर टॉप कर रहे कमांडो हो सर कोर्स आप। करना ज्यादा आसान था, टू स्टे विद यू ना इट्स नाइटमेयर। सर कमांडो वापस भेज दो, आपके साथ नहीं रहना सर। सर तो फिर मैं कब आ जाऊँ आपके पास? तू तो कभी आ जा, तू यूर फैमिली है ना, तू आ जा मेरी तरफ से। निकल ले नहीं वहां पे बस तो में वो बैठ के। कमांडो कोर्स के लिए सर। आ जा, एनी टाइम यू आर मोर देन वेलकम डार्लिंग। हाँ, बट आई एम रियली हैप्पी ओके सर, योगेश। श्योर सर। इट इज ए लॉन्ग जर्नी, ड्रीम कम ट्रू, है ना। जब कहते हैं ना घर में बच्चा अच्छा करता है, पेरेंट्स आल्सो फील गुड, यू नो। ठीक है, सही बात है। देयर हैव बीन इंसिडेंट्स, बीच में ऐसा भी था जब भी मैंने तेरे को डांटा था,
कितना डांट दिया था? किसी एकेडमी ने आपकी फोटो क्लेम कर दी, आपने बोला सर मैं तो कभी गया भी नहीं हूँ सर जयपुर, उन्होंने मेरी फोटो भी डाल दी और बोला कि भाई आपने हमसे ट्रेनिंग ली थी एंड दे सेड कि ना मनी शनी एंड ऑल दैट। हाँ, मैंने तब भी तुझे डांटा था, है ना, याद yes, है? yes sir, I ऐसे remember, I remember. मैंने बोला कि मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहे बेशक अपनी फोटो उनके साथ लगा दो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। मुझे दिक्कत इसमें है कि अगर मैंने आपको सिखा दिया, व्हाई यू आर नॉट बीन एबल टू टेक डिसीजन फॉर योर ओन सेल्फ? अपना डिसीजन कब लेगा? फौज में भी मिलेंगे ऐसे सीनियर भी मिल जाएंगे जो बोले अब डू इट, हम चलेंगे, और टेल यू ठीक है, अगर चीज गलत है तो नहीं होगी, मतलब नहीं होगी। बट बहुत लोगों में जान नहीं होती, उसी तरह कहता है यस सर, राइट सर, ओके सर, 3 bags full, 1 for you, सर सेकंड 1 for you, सर थर्ड ऑफ कोर्स, अरे सर थर्ड वन इज आल्सो फॉर यू। नो, यू स्टार्ट मेकिंग गुड चॉइसेस टुडे, है ना? मैंने उस समय भी तुझे बोला था, यू सेड सर आई गॉट इट, बट सर मैं करूंगा, सर व्हाट शुड आई डू? मैंने कहा मैं आंसर नहीं दूंगा, मैंने एसएसबी के लिए भी नहीं समझाया। अपना डिसीजन मैं खुद लेगा, ठीक है? एंड यू टेक Yes योर sir. ओन डिसीजन, either you regret later on at some stage in life, or you take your decision, a good one, strong one, and you feel proud of yourself. Sir. मैंने उस एकेडमी को कोई रिबिटल नहीं लिखा था, they want to claim, why not, ठीक है? But you took your Then, own decision, then उसके बाद में you never looked back. after you motivated me, I texted him that it is actually very unethical, sir. Please remove my photo. Then he was like कि नहीं नहीं ऐसा है वैसा है। मैंने बोला नहीं sir, you need to remove it. Then finally after like 1-2 घंटे बाद he removed my photo from his page. I don't So want to it take is, his name, but okay. हाँ, नेम Yes. नॉट रिक्वायर्ड, मैं हमेशा बोलता हूँ, ठीक है, लेट देम डू, है ना? नेचर वैसे भी चेंज नहीं होगा योगेश, नाम अगर हम यहाँ ले भी देंगे ना, तब भी किसी का ना तो नेचर चेंज होगा ना सिग्नेचर चेंज होगा। बट आई एम हैप्पी दैट हाँ यू इमर्ज्ड एज अ स्ट्रांग मैन, यू मेक योर चॉइसेस नाउ, यू टेक योर ओन डिसीजन, ठीक है ना? सर, रिग्रेट नहीं होनी चाहिए अपने डिसीजन। सो आई एम रियली हैप्पी, ठीक बिल्कुल है? नहीं। जैसे पेरेंट्स को अच्छा लगता है, आई एम वेरी हैप्पी, है ना, कि तू जा रहा है। आई विल बी मोर हैप्पी द डे यू जॉइन, ठीक है? आई विल बी मोर हैप्पी द डे द Sure, sir. पीपिंग सेरेमनी इज देयर एंड आई विल विजिट माय एकेडमी वंस अगेन। ऐसा 25 साल अरे पे तो सर जाना ही है हम लोगों you ने, हाँ? हाँ 25वां कब हो रहा है आपका? बस तेरे रहने के, जब तू पास आउट हो जाएगा उसके बाद है, हमारा 2 साल है अभी, 25 years, है ना? So I'll be I'll going also back join there. your 25 years. I don't know अभी एकेडमी का सेटअप चेंज हो गया एंड ऑल दैट, बट वी वर इन जिसामी 14, जिसामी 14 सबसे पीछे। इवन, है ना, गॉड्स Okay. एंड बड़ी डेमंस है ना, दे नेवर यूज्ड टू विजिट जिसामी 14। एकेडमी में ना Why उस्ताद से so? लेकर ऑफिसर बोलता है व्हाई सो, वी वर इन द एक्सट्रीम एंड, वहां पे कोई नहीं आता था एक टाइम के बाद में, तो रात भर, है ना, बड़ी रौनक लगी रहती थी। बाकी लोग एक टाइम के सो जाते थे, पनिशमेंट भी मिलती थी, दौड़ने का रूट होता था, दूसरी कंपनी वाले बोलते यहाँ से नहीं जाऊंगा मैं, यहाँ से गया तो रात भर फिर बजूंगा उसके बाद में, बिकॉज तो रात भर लगे रहते हैं। तो जिसामी 14 वाज खर्राट यार, हमें तो मतलब रात भर की बजा डालो, रुक क्यों गए, बजाओ। वो ऐड ना हमारे भी बनी है, ठीक है? तो दिन भर रात भर बजते ही रहते थे। तो जाके लोकेशन देख लेना, इफ यू आर इन जिसामी, गॉड ब्लेस यू, है ना, बट यू विल इमर्ज एज अ स्ट्रांग मैन इफ यू गो टू जिसामी 14, ठीक है? Okay sir, sure sir, sure सो sir. मेंटेन योरसेल्फ, डू स्टे इन टच, कीप अटेंडिंग द क्लास, ठीक है? एंड कीप Sir, टॉकिंग टू योर I'm फैमिली। always there in class. ठीक है, Mean you thank you all the so good, much sir. Yogesh. Really, so very proud of you, and mean all the good to you. May all my अरे सर happiness be चरण yours. स्पर्श। Hey, come on. God Yes bless. sir. Love you, Yogesh. Thank Love you you. so God much. bless. Love you too sir. God bless. Thank you sir. Bye bye. हाँ. Bye. Bye.